السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا مجاہد جسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا اور انہوں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت کے بادل منڈرانے لگتے تھے اور ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخم کے نشانات نہ ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر یہ کہا کہ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ خالد بن ولید صرف عالم اسلام کے نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے بھی ہیرو ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی، حاکم عملی اور جنگ کا ماہر پیدا نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے، کسی دشمن کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ یہ بات ہے 625 سے 629 عیسوی کے بیچ کی۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی ایک جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی تھا جنگ کرنا۔ ان کے والد نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزے بازی، تلوار بازی، چھپ کر وار کرنا، تعقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے اور اس وقت یہ عربوں کا عام رواج تھا۔ عرب کا ہر جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا تھا۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعارف جنگ احد میں ہوا تھا۔ خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے گھڑ سوار دوستوں کو آتا دیکھ کر 40 تیر اندازوں کو پہاڑی پر بھیج دیا اور حکم دیا کہ چاہے جو ہو جائے تم لوگوں کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونے لگی تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان 40 تیر اندازوں میں سے کچھ حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے آ گئے، جس کا بھرپور فائدہ خالد بن ولید نے اٹھایا، جس سے کفار کی گھڑ سواروں کی فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمان کے پشت پر حملہ کر سکے۔ اس حملے کے نتیجے میں جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جو مسلمانوں کے لیے ایک شدید چوٹ تھی۔ یہ بات لگ بھگ 229 عیسوی کی ہے، جب عبیدیہ میں قریشوں سے صلح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے اور خالد بن ولید کو ملاقات کے لیے بلوایا، لیکن خالد بن ولید مکہ سے غائب ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حاضر نہیں ہوئے۔ خالد بن ولید کے بھائی والد بن ولید جو کہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے خالد بن ولید کو بہت تلاش کیا لیکن ناکامیاب رہے۔ پھر آخر میں انہوں نے خالد بن ولید کے نام ایک خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی گزارش کی۔ اس خط کو پڑھ کر خالد کے دل میں مدینہ جانے کی خواہش ہوئی۔ پھر خالد بن ولید عثمان بن طلحہ و حضرت عمر بن عاص کے ساتھ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص اسلام سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد خالد بن ولید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور اجازت سے جو جنگیں لڑی، ان میں سے ایک جنگ موتا بھی تھی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی تیاری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر عالم سنبھالیں گے اور اگر جعفر بھی شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن روا ان کی جگہ پرچم اٹھا لے اور اگر عبداللہ بن روا بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر منتخب کر لے۔ اور پھر میدان جنگ میں یہی ہوا۔ حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کی بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکالا۔ یہ پہلی بار تھا کہ خالد بن ولید اسلامی فوج کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ ایک بار خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ جنگ پر گئے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہوئی۔ ایرانی سپہ سالار نے آپ سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہے کہ کسی کے جسم چھو بھی جائے تو اسے ترنت موت کی نیند سلا دے گا۔ آپ نے اس ایرانی سپہ سالار کے ہاتھ سے وہ زہر لیا اور اللہ کا نام لے کر پی گئے اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ کو پورا یقین تھا کہ جو کام اللہ آپ سے کروانا چاہتا ہے وہ ہر حال میں کروا لے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے آگے نہیں جھکے گی اور آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
वसल्लम के बाल मुबारक की बरकत थी, जिसे आप हर वक्त अपने वजूद के साथ जोड़े रखते थे। जंग यरमुक के मौके पर कि जब 60,000 ईसाइयों का लश्कर मुसलमानों के लिए दर्दे सिर बना हुआ था, इस मामले से निपटने के लिए सहाबाओं ने मशवरा किया। इसमें आपने यह तजवीज़ पेश की कि दुश्मन को परेशान करने और शिकस्त देने के लिए 30 मुजाहिदीन के साथ उन पर हमला करूंगा, जिस पर सहाबाओं ने यह फैसला लिया गया कि आप 60,000 मुजाहिदों के साथ उन 60,000 ईसाई लश्कर पर हमला करेंगे। फिर क्या था, आप 60,000 मुजाहिदों के साथ उन 60,000 ईसाइयों पर टूट पड़े। तारीख ने ये नजारा भी देख लिया। आपने 59 मुजाहिदों के साथ मिलकर ईसाइयों लश्कर को नाको चने चबवा दिए। ईरानी सल्तनत की सरहदें मगरिब में रूमी सल्तनतों से मिलती थी। जब दोनों की ताकतों को मुसलमानों से खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी फौज इकट्ठा कर ली। यह पहला मौका था कि रूमी और ईरानी सल्तनत एक दूसरे की इत्तेहादी बनकर मुसलमानों के मुकाबले पर आए। अल्लाह के फजल से खालिद बिन वलीद दोनों सल्तनतों से टकराए और उनको शिकस्त दी। एक बार जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इराक में अपनी मुहिम जुई शुरू की और उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें शाम जाने का हुक्म दिया। शाम रूमी बजंतीनी सल्तनत का एक बहुत बड़ा सूबा था और बुनियादी तौर वहाँ जितने भी बजंतीनी कमांडर थे वह यूरोप से आया करते थे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की यह मुहिम रोमियों के साथ मुसलमानों का पहला तसादुम थी। इस तसादुम में शाम में मौजूद हुआ तमाम रूमी फौज शरीक हुई, जिसकी क़यादत कुस्तुनतुनिया का हुक्मरान हरकल हरकुलिस खुद करता था। बाज़ंतीनी सल्तनत के सूबे अर्मेनिया से यूरोप तक फैले हुए थे। जब खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज के दस्ते को शाम की तरफ भेजा, उस वक्त शाम की सारी आबादी ईसाई थी, जिसमें अरब ईसाइयों की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी। इसके अलावा पारसी भी बहुत बड़ी तादाद में थे। इस सारी सूरत हाल में जंगी मुहिम के लिए खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ भेजा गया। शाम में पहले मौजूद दस्तों में से एक की क़यादत जलीलुल मुक़द्दर सहाबी हजरत अबू उबैदा बिन ज़र्रा कर रहे थे। मुख्तलिफ जानिब से मुसलमानों के कई दस्ते जो कि मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे, जो मुल्क शाम पहुँच रहे थे, उनके मुकाबले में हरकुलिस ने एक बड़ी फौज इकट्ठा करना शुरू कर दी। चुनांचे खतरा पैदा हुआ कि मुसलमानों के दस्ते आस पास के इलाकों में बिखरे हुए हैं, इसलिए वह रूमी फौज का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इन मुसलमान दस्तों को इकट्ठा ना होने दिया जाए और एक एक दस्ते को अपनी अपनी जगह पर हमला करके तबाह कर दिया जाए। हरकुलिस की हिकमत अमली भी यही थी कि वह भारी लश्कर को हमरा उन मुसलमान दस्तों को मिलाने वाले रास्तों को मुनकिद कर दे। वह मुसलमान लश्करों को तस्कीम करके जब यह इत्तला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंची तो आपने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वह फौरन शाम पहुँचे और वहाँ के लश्करों की क़यादत संभाली। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु रेगिस्तान से होते हुए शाम में दाखिल हो गए। रूमी फौज ने यह तवक्को ही नहीं की थी कि मुसलमान लश्कर इस रास्ते से भी आ सकता है। शाम पहुंचकर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले अबू उबैदा बिन ज़र्रा से राब्ता किया और फिर आपस में बैठकर सलाह मशवरा करके जंगी हिकमत अमली तैयार की और फैसला किया कि तमाम मुस्लिम फौजें फौरी तौर पर इकट्ठा हो ताकि अकेले अकेले दुश्मन के जाल में फंसने से बचा जा सके। शाम बाज़ंतीनी सल्तनत का सबसे खूबसूरत सूबा था और यही वजह थी कि वे बहुत शिद्दत से इसका दिफा कर रहे थे। शुरू में मुसलमानों की छोटी छोटी झड़प के साथ कुछ छोटे किले फतह किए गए। इसके बाद मुसलमानों ने बारे रस दमिश्क का मुहासरा कर लिया। इसी बीच ये खबर मिली कि हरकुलिस ने अपनी फौज को इस तरह तरतीब दिया है कि मुसलमानों को पुश्त की तरफ से घेरना चाहता है और अजनादैन के मुकाम पर अपनी फौज जमा कर रहा है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज लेकर अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अजनादैन के जानिब बढ़ना शुरू किया, जहां मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन इससे पहले गैर मामूली वाकया पेश आया। मुसलमानों का लश्कर जब दमिश्क के मुहासरे को छोड़कर वापस पलटा तो आखिर में मुसलमानों के कुछ औरतें और बच्चे रह गए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब थोड़ा आगे निकल गए तो रूमी किले से बाहर निकले और मुसलमान औरतों के खेमों को घेर लिया। इनमें हजरत खौला भी थी जो हजरत ज़र्रा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये इत्तला मिली तो वो फौरन पलटे और मुट्ठी भर मुजाहिदीन को साथ लेकर गैजो गजब के आलम में कयामत बनकर कुफ्फार पर टूट पड़े। कुफ्फार को अंदाजा ही नहीं हुआ कि उन्होंने किसे छेड़ दिया। अजनादैन में फतह हासिल करने के बाद मुसलमान का रुख वापस दमिश्क की जानिब हो गया। दमिश्क के
मुसलमान फौज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक तरफ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरी जानिब अबू उबैदा बिन जर्रा ने कमान संभाली। दमिश्क के लोगों को यकीन था कि दमिश्क का मजबूत किला उनकी हिफाजत करेगा और वह किसी कीमत पर सुलह पर राजी न थे। जो मार रोमियों को अजनादैन या बाकी छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़ चुकी थी, वह उससे निहायत खौफजदा थे। लिहाजा खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने छापा मारकर कार्रवाई के जरिए दीवार फलांग कर दरवाजे खोलने का फैसला किया और फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग करते हुए शहर में दाखिल हो गए। जब दुश्मनों को लगा कि शिकस्त यकीनी है तो शहर की क़यादत उस दरवाजे को दौड़ी जहां हजरत अबू उबैदा की फौज मौजूद थी। जहां अबू उबैदा ने अमन और आफियत से शहर में दाखिल होने और अपने हथियार डाल देने की पेशकश करते हुए सुलह की शरायत तय की। हजरत अबू उबैदा ने उनको अमान दे दी। दूसरी जानिब इन सबसे अनजान खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी भी जंग कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा एक अजीबो गरीब मंजर देखने को मिला कि दोनों मुसलमान फौजें दमिश्क के बीच में आपस में मिलती है, जिसमें एक फौज अमन से दाखिल हो रही थी और दूसरी तरफ अनजान खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार से खून टपक रहा होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी जगह खलीफा बने। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दमिश्क की जंग के दौरान ही एक मकतूब हजर अबू उबैदा को लिखा, जिसमें खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमान फौज के कमांडर के ओहदे से हटाकर आम सिपाही बनाए जाने का हुक्म था, जिसमें नया सिपा सालार अबू उबैदा बिन जर्रा को मुकर्रर किया गया था। जब यह बात खालिद बिन वलीद को पता चली तो उन्होंने इस हुक्म को सराखों पर तस्लीम किया और कहा कि अगर मैं उमर के लिए लड़ता था तो अब नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं अल्लाह के लिए लड़ता था तो इसी तरह अपनी जिम्मेदारियां सर पर अंजाम देता रहूंगा। और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार वैसे ही चलती रही जिस तरह एक मुजाहिद और अल्लाह के सिपाही की तलवार चलती है। ऐसा करना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पेश नजर एक हिकमत थी। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाद में इसकी वजाहत भी की, लोगों को बताई कि मुसलमानों को फतह खालिद की वजह से होती है और उनका अल्लाह पर यकीन कमजोर ना हो, इसलिए उन्होंने यह हुक्म दिया था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हर मौके पर खलीफा के हुक्म की अताअत की। आपने अपनी बाकी की जिंदगी हमस में गुजारी और 642 ईस्वी में जब आप अपनी वफात के करीब पहुँचे तो आपने फरमाया, मुझे सख्त अफसोस है कि मैं एक बूढ़े ऊँट की तरह जान दे रहा हूँ। मुझे सख्त शर्मिंदगी है कि मैं मैदान जंग में शहीद नहीं हो सका और अल्लाह के क़यामत तक कभी किसी बुज़दिल को सुकून और इत्मीनान ना दे। उस पर उनकी ज़ौजा ने तसल्ली दी कि आप शर्मसार ना हो। आपको जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दे दिया है तो इसका मतलब ही ये है कि अब ये सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार मैदान जंग में किसी काफिर के हाथों नहीं कट सकती। आपके नसीब में शहादत नहीं थी। अपनी औलिया की तरफ से इस तसल्ली के बाद अल्लाह का यह सिर्फ जरा पुरसुकून हुआ, जिसके बाद 642 ईस्वी में ही आप इंतकाल फरमा गए। अल्लाह की तलवार जिसने अजीम सल्तनतों के चिराग बुझा दिए, वफात के वक्त उनके पास कुछ भी ना था। आपने जो भी कमाया सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। आपके घर जंगी हथियार के अलावा और कुछ भी ना था। जब हजरत खालिद बिन वलीद के इंतकाल की खबर शाम में मदीना पहुंची तो कोहराम मच गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो लोगों को मना करने की कोशिश कर रहे, लेकिन जब मालूम हुआ कि यह अब्दुल्ला खालिद बिन वलीद की वफात की खबर है तो फिर वह भी खामोश हो गए। फिर अहले मदीना से कहा कि आज जो आँख रोना चाहती है वह आज रो ले, जो जुबान कुछ कहना चाहती है वह कह ले, क्योंकि वह जो कुछ भी कहेंगे सच ही कहेंगे। लोगों को दोबारा अब्दुल खालिद बिन वलीद के वजूद पर रोने का मौका नहीं मिलेगा। इससे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में फरमा चुके थे कि हाँ, मैं अब दोबारा खालिद जैसा बेटा पैदा करने से कासिर हूँ। दोस्तों, अगर इसमें हमसे कोई गलती हुई हो या आपका कोई सुझाव हो या फिर आप किसी और हुक्मरान या किसी रियासत के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।